this is the sum like I showed you yesterday as well, in which balance sheet is given. ठीक है, balance sheet is there, and then receipts and payments. इसमें start कैसे करना है वही important है. Once you get this तो पता चल जाएगा. Okay, the question says that following are the balance sheets and the receipts and payments account of Cosmos Club for 2019. Balance sheet can be seen. So many amounts are there: bank balance, subscriptions, furniture, sports equipment, prepaid insurance, outstanding salary, life membership fees, advance subscription, donation for building, match fund and capital fund. So this balance sheet is given to us, the opening balance sheet. Then is receipts and payments account, and then we have some more adjustments. The subscriptions outstanding for 2019 rupees 1500, okay, for the year 2019. Salaries due rupees 500. Insurance expires on 31st of March 2020, and depreciation to be charged on furniture at the rate of 10% and on sports equipment at the rate of 15%. Okay, subscription से start करते हैं. On the income side, let us write the format. Outstanding subscriptions is always an asset. Okay, and pre-received subscriptions is always a liability. Subscriptions received. How much is subscriptions received given to us? Anyone? 14,000. Subscriptions, we can see that 14,000, and including 2,000 for the year 2018. That means of previous year, right? So let me write this: subscriptions received 14,000, and out of this 14,000, 2,000 is of previous year. So outstanding previous year, I'll have to deduct this. Now, if I just bold this and subscriptions due over here. Okay, so can you tell me the hint, like what is it? Like subscriptions due was 2,500, out of that 2,000 has been received in current year. इसका मतलब क्या है? Last year outstanding था 2,500, उसमें से 2,000 rupees मिल गया है. तो सर 500 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो जाएगा. Yes, outstanding previous year. Okay. ओह सॉरी सर, हाँ प्रीवियस. हाँ, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, and ये हो जाएगा current year. तो ये हो जाएगा 500. I want you to please I just remove this head from here. Done. अब क्या करेंगे? After subscriptions, salaries due is rupees 500. So salaries can be seen over here.
ओके, एक एडजस्टमेंट में है, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में है। ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरीज दिख रहा है, हाँ ये रहा, यहाँ पर है सैलरीज। ओके, तो कैसे लिखूंगा और कहाँ लिखूंगा मुझे वो बताओ। So income and expenditure में expenditure side, ओके, टू salaries ठीक है, फिर plus outstanding salaries. ओके, पहले सैलरीज का 4,000 रुपीज लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग salary Salary. 1000. ये होगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और प्रीवियस ईयर का मुझे माइनस करना होगा, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ओके, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है, 1000 या 500? 500. इज राइट। जो 1000 जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में है वो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है, इसीलिए माइनस करना होगा। ठीक है, सो इफ आई नाउ गेट मी द नेट अमाउंट, द आउटर कॉलम कितना रहेगा, 3500, दैट्स करेक्ट। अब इसमें से कौन से अमाउंट का सेकंड इफेक्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी rupees 500 has to be given the second effect in the balance sheet liability side. So I'm done with subscriptions, I'm done with salaries. If anyone has any problem, please ask. सर प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वो डेट चेंज कर देना 2016 में। कहाँ पर, हाँ बैलेंस शीट। Insurance expires on 31st of March 2020. इसका मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस का अमाउंट यहाँ दे रखा है 2000 और यहाँ पे भी है प्रीपेड इंश्योरेंस। कैसे ट्रीट करेंगे और कहाँ लिखेंगे? So expenditure. Expenditure is right. So let me write it on the expenditure side to insurance. ठीक है, how much amount of insurance has been paid in current year? That's 2000. 2000. अब प्रीपेड है तो प्रीपेड हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके, करंट ईयर, एंड ऐड करेंगे प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीवियस ईयर। ऑलवेज ओप्पो वाला कंसेप्ट अप्लाई करते रहना, विदाउट एनी कंफ्यूजन, सब ठीक हो जाएगा। अब प्रीपेड प्रीवियस ईयर ये जो है 400, इसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस? So plus करेंगे। प्लस करना है, ठीक है। और प्रीपेड करंट ईयर कितना होगा मुझे वो बताओ, बिकॉज वी आर जस्ट गिवन दिस हिंट कि इंश्योरेंस एक्सपायर्स ऑन 31st of March 2020 एंड इंश्योरेंस अमाउंट गिवन टू अस इज 2000। इसको कैसे डील करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट प्रीपेड इंश्योरेंस फ्रॉम हियर? So 15 months है, so 3 months extra होंगे। 3 months एक्स्ट्रा होंगे वो सही है, लेकिन 15 months seems to be wrong. So 500. यस सर 500। 500 क्यों 500 आएगा? 12 months का 2000 है तो 3 months का कितना? इंश्योरेंस के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने हर बार से कहा है कि इट इज ऑलवेज लाइक कि इट इज पेड फॉर अ ईयर, एक साल का रहता है। तो 12 months का 2000 है तो 3 months का कितना होगा? तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो 500 आएगा, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस करंट ईयर विल बी 500 एंड 500 विल बी डिडक्टेड। ओके, प्लीज टेक केयर। हमेशा इंश्योरेंस का हमें एक साल का ही कैलकुलेशन करना है, इट विल नेवर बी फॉर 15 months। हमें नॉर्मली रेंट वगैरह का एडजस्टमेंट कैसा होता है, जैसे हमने कल भी सॉल्व किया था, रेंट इज पेड अप टू, तो तब का पे किया हुआ है, तो इसीलिए वी टुक इट फॉर 15 months, बट इंश्योरेंस में इट विल ऑलवेज बी फॉर 12 months ओनली। प्लीज टेक केयर। ओके, नाउ 500 प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? Asset side. Asset side, that's very correct. Let me write it. Prepaid insurance. Okay. After this insurance, charge depreciation on furniture at the rate of 10%. Okay. Furniture का depreciation है. Furniture का opening balance दिख रहा है 9000. So let me write this. पहले हमेशा जैसे मैं गाइड करता रहता हूँ आप लोगों को कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले आप इनर कॉलम में लिख ही दो 9000, ठीक है। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपको चेक करना है कि फर्नीचर कहाँ दिया हुआ है, रिसिप्ट्स में है या So 9000 purchase है। 9000 परचेज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, ये कैसे मैनेज करेंगे इसको बताओ मुझे आप। मैंने बताया था कि फर्नीचर यहाँ पर भी है, परचेज में भी है, तो सेल में भी है, राइट।
तो माइनस कितना करूंगा मैं, मुझे वो बताओ अब। 4,000. 4,000 इज राइट। ओके, अब ये नेट अमाउंट कितना बचेगा मुझे वो बताओ। 14,000 रहेगा, ठीक है। अब आके आप डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। बताओ कितना डिप्रिसिएशन आएगा। 1400 माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट कितना रहेगा आउटर कॉलम में। 12,600. यस बोलो। सर पहले भी तो हम मतलब ऐसे फर्नीचर स्टार्ट करते तो फिर इनर कॉलम में 9,000 ओपनिंग वाला और फिर आउटर कॉलम में भी तो पहले से ही कुछ लिख दे देना। हाँ, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है ना हमें यहाँ पर। हमें सिर्फ इतना पता है फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस इतना है, परचेज इतना किया है, सेल इतना किया है और डिप्रिसिएशन इतना देना है। ओके, आप जो बता रहे हो तो वो ऐसा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जब दोनों बैलेंसेस पता होते हैं ना तो मैं पहले से आउटर कॉलम में लिख देता था। अच्छा ओके सर। ठीक है, ओके डन। अब क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन 1400 आया, तो इसको यहाँ जाके लिखना पड़ेगा मुझे। एक्सपेंडिचर साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट भी है मेरे ख्याल से यहाँ पर। तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ, हाँ लॉस में लिखूंगा यहाँ पर अलग से, टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। अब ये लॉस में कितना लिखूंगा वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड अच्छा, इंश्योरेंस का अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखा था हमने, 1900 आएगा, ठीक है। ओके, तो अब ये जो है ना यहाँ पर डेट दे रखा है, हमने फर्नीचर को कब सेल किया है वो डेट दिया हुआ है। लग रहा है कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। इसका भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। करते अगर फर्स्ट डेट ना होता तो, ठीक है। 4,000 का हमने 2100 में सेल किया है तो लॉस इज 1900। लेट मी राइट depreciation as well over here, 1400, ठीक है। So done. तो फर्नीचर का कंप्लीट हुआ एडजस्टमेंट। आई रिपीट, opening balance was 9,000, purchase was 9,000, sale was 4,000 for 2,100, and we were asked to charge depreciation at the rate of 10%. तो क्या किया, 9,000 opening balance लिखा, प्लस परचेज माइनस सेल, टोटल 14,000 आ गया नेट अमाउंट। फिर उसका हमने फिर ये किया कि 10% depreciation किया, 1400, outer column 12,600, और 1400 depreciation expenditure में लिखा and loss को 1900 भी expenditure में लिखा। If anyone has any doubt regarding furniture adjustment, please ask. Next is now sports equipments. Sports equipment का भी depreciation करना है at the rate of 15%. Opening is 20,100. Sports equipment can be seen over here and over here नहीं है, ठीक है। तो पहले ओपनिंग बैलेंस 20,100, तो लेट मी राइट इट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,100, ओके, प्लस परचेज 10,000, ओके, इस टोटल हो जाएगा 30,100, ओके, less depreciation at the rate of 15%. अब यहाँ पर भी एक एक्चुअली इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं बुक में खाली चेक करूँ कि ये 15% है कि 15% पर annum है। Just 1 minute please. मतलब ये है कि यहाँ पर 15% की जगह पर 15% पर annum आना चाहिए। किसी को याद है मैंने क्लास 11 में बता रखा है ये चीज, एक ये है 10% और एक ये है 15% पर एनम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मैं बताता हूँ। अब पर एनम का मतलब ये होता है कि वी नीड टू कंसीडर द टाइम फैक्टर, कि if the asset has been there with us for 3 months, 6 months, 9 months, so accordingly depreciation will be calculated. पर एनम है तो टाइम फैक्टर है, और पर एनम नहीं है तो टाइम फैक्टर कंसीडर करना ही नहीं है। जैसे फर्नीचर का 10% था तो क्या किया हमने, आई टुक इट वेरी सिंपल, कि फर्नीचर का जितना भी टोटल अमाउंट आ रहा है उसका डिप्रिशिएट कर दिया, 14,000 का 10% 1400 कर दिया।
बट बिकॉज दिस इज 15% पर एनम और यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है कब परचेज किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने 17 को, तो 17 से लेकर 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स होते हैं। सो ये जो एडिशनल परचेज है उसका डिप्रिसिएशन हम लोग 6 मंथ्स का ही देंगे। ओके सो अब ये बताओ कि डिप्रिसिएशन टोटल आएगा कितना। लेट मी राइट इन ब्रैकेट ओवर हियर। यस, पहले 20,100 का 15% करो, कितना आ रहा है? 20,100 का 15%, 3015. that's correct. एंड अब ये करना है कि 10,000 जो हमने एडिशनल परचेस किया है 17 को परचेस किया है, सो 10,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा? 750. 750 is right. ठीक है, तो this is what I want you to please take care. Right? तो total depreciation कितना हो जाएगा? 3765. 65. Okay, तो 3765 needs to be deducted from 30,100. तो net amount outer column कितना आएगा? 26335. That's very correct. 26335. ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट पार्ट वाला जो था अमाउंट वो खत्म हुआ। आफ्टर एडजस्टमेंट्स अब एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करना है बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस 4500 कैन बी सीन 4500 ओवर हियर। तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका कुछ नहीं करना। सब्सक्रिप्शंस हम ट्रीट कर चुके हैं, फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया। सो ये पांचों के पांचों अमाउंट्स हो गए। लायबिलिटी साइड सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रीट कर चुके हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस 4,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में है और यहाँ पर रिसिप्ट्स में दिख रहा है 5,000। ओके, तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी करना होगा। ओके, तो पहले लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी साइड लिखना होगा। ओपनिंग बैलेंस वाज 4,000 प्लस एडिशंस, कितना एडिशन हुआ इसमें? 5,000 हुआ। ठीक है, सो 4 + 5 करके टोटल 9,000 आउटर कॉलम में लिखना होगा। सो आई एम डन विद लाइफ मेंबरशिप फीस। एडवांस सब्सक्रिप्शन हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, donation for building is a liability, so let me copy this as it is. First of all, donations for building rupees 15,000। अब ये चेक करना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ दिया हुआ है? एनीथिंग? नहीं दिया ना, so this amount needs to go in the outer column directly। ठीक है, 15,000। फिर मैच फंड is always a liability, so let me copy this as well in the balance sheet। मैच फंड rupees 5,100। अब मुझे ये ढूंढना होगा 5,100 के रिलेटेड, मैच फंड के रिलेटेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो मैच फंड कैन बी सीन ओवर हियर, रिसिप्ट्स में 10,000 है और मैच एक्सपेंसेस कैन बी सीन ओवर हियर 8,000। करेक्ट, हाँ इतना ही है। सो मैच फंड में प्लस करूंगा मैं जो डोनेशंस मिले हुए हैं, एडिशनल डोनेशंस रिसीव्ड। सो लेट मी ऐड ओवर हियर प्लस डोनेशंस रिसीव्ड rupees 10,000। okay, and then less match expenses। ठीक है, expenses is 8,000। नेट अमाउंट बताओ आउटर कॉलम में कितना आएगा? Anyone? 15 minus 8, 71। 7,100. After match fund, we can see that it's a capital fund given. So capital fund is also a part of the balance sheet. So let me write it over here, capital fund, but in a column में रहेगा amount 10,800. So I'm done with the opening balance sheet now. Opening balance sheet के बाद we'll start the receipts as we normally do. Receipt side में opening balance है, वो तो हम यहाँ से देख चुके थे, तो इसका second effect कहीं और देना नहीं है। Subscriptions हम already deal कर चुके हैं। Life membership हो गया। Entrance fees नहीं हुआ है। Entrance fees को कहाँ लिखेंगे? Yes, anyone? Income side. Income side, that's very correct. By entrance fees, amount for entrance fees is 3,000
ओके, आफ्टर दैट सेल ऑफ फर्नीचर का हम लॉस लिख चुके हैं, 4000 माइनस कर चुके थे, ठीक है। मैच फंड भी हो गया, सो रिसिप्ट साइड इज ऑल अमाउंट्स कवर्ड। नाउ पेमेंट साइड में इंश्योरेंस, सैलरी, ये दोनों ही कर चुके हैं हम लोग। सन्ड्री एक्सपेंसेस इज नॉट कवर्ड, ये कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर, ओके। सो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹2500, ठीक है। फर्नीचर भी हम डील कर चुके हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डील कर चुके हैं, मैच एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हैं, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये कहाँ लिखेंगे? So asset side. Yes, always asset side. So let me write it over here. Cash balance ₹3,100. Done. Okay. So I'm sure like you have understood this part. पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एडजस्टमेंट्स एक एक करके जो भी रिलेटेड अमाउंट्स थे, रिलेटेड अमाउंट्स फ्रॉम बैलेंस शीट, फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट सब कंसीडर करना है। ये खत्म करने के बाद ही हम लोगों ने फिर ओपनिंग बैलेंस शीट के अमाउंट सारे ट्रांसफर किए एंड देन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का ट्रांसफर किया। इस टाइप के सम्स का आने का चांसेस बहुत कम है, बट क्योंकि एक्सरसाइज में है, होमवर्क में भी मैंने शेयर किया है, तो हमें आना चाहिए, करेक्ट। तो लेट अस गेट द टोटल एंड द डिफरेंस प्लीज, जल्दी से कितना आ रहा है टोटल? 17,100. ओके, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करो, डिफरेंस फाइंड करो, कितना आ रहा है? 5,900 is the surplus. Total is 11,200. 5,900, ठीक है। Yes, sir. ओके, टू सरप्लस 5,900, ये सरप्लस जो आएगा वो कैपिटल फंड में ऐड होगा, ठीक है। सरप्लस 5,900। अब तो कैपिटल फंड का अमाउंट आउटर कॉलम में बताओ कितना आ रहा है? 16,700. टोटल ऑफ बैलेंस शीट करो फिर। कुछ लिखना भूल गए, पता है क्या? सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड लिखना भूल गए। वही, so let us write that. To depreciation on sports equipment, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, वहाँ पर 3765। ओके, अब 5900 में से 3765 माइनस करेंगे तो 213 balance sheet, opening balance can be seen as 1200 and closing is 2300. Okay, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो we are not taking into account the other things for subscriptions.
सब्सक्रिप्शन का जो फॉर्मेट हम लोग यहाँ बनाते हैं ऑन द इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शंस एंड देन ओप्पो CPCP, ठीक है। तो उसमें तो ये है कि लाइक 4 अमाउंट्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 ही अमाउंट्स हैं, प्री रिसीव नहीं है। तो about the subscription, about the postage stems. Third adjustment says that the rent of 1500 related to the year ended 31st of March 2020 and 1500 is still unpaid. Okay, 2020 is previous year, ठीक है। प्रीवियस ईयर का अगर हम पे कर रहे हैं मतलब प्रीवियस ईयर का कुछ तो बाकी रहा होगा, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज माय लायबिलिटी, तो सबसे पहले मुझे यहाँ लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1500, ठीक है। और 1500 इज स्टिल अनपेड, दैट शोज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 1500, ठीक है। अब ये करना है कि रेंट हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर साइड टू रेंट, अमाउंट इज 18,000, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एंड माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है 1500 है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना है वो भी 1500 है। 18,000 का 18,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। प्लीज चेक दिस रेंट ₹1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31st of March 2020, मतलब वो लास्ट ईयर का बता रहा है तो इसलिए मुझे आउटस्टैंडिंग लिखना पड़ा। एंड ₹1500 स्टिल अनपेड, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आ गया। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड किया, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस कर दिया ओप्पो के हिसाब से CPCP, दैट्स फाइन। ओके, आफ्टर दैट the fourth adjustment says that on 1st of April 2020 the club owned furniture 15,000, furniture valued at 22,500 on 31st of March 2021, furniture opening balance बता रहा है 15,000 और furniture is valued as on 31st of March 2021 is 22,500, right? Furniture 22,500, but again ये fixed asset है, बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड एसेट तो मुझे फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में पहले लिखना होगा। इनर कॉलम में 15,000 लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में चेक करना है, तो गो टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, फर्नीचर फाइंड करो, कहीं है 10,000 सर, 10,000 ऑन द पेमेंट साइड,
right? So it's a purchase, so I'll add it plus purchase 10,000, total हो जाएगा मेरा 25,000. अब अगेंस्ट 25,000 आउटर कॉलम में मेरा अमाउंट है 22,500. So difference is depreciation. 2,500. Yes, and that has to be taken as depreciation 2,500. ठीक है, I'm sure this part is clear to all of us now. ठीक है, अब depreciation, let me not forget this to write over here. To depreciation on furniture 2,500. ठीक है, तो ये भी हो गया. अब लास्ट लाइन says that the club has a loan of 20,000 at the rate of 10% per annum which was taken in the year 31st March, year ended 31st March 2020. तो लास्ट ईयर हमने लोन लिया था, तो लोन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी. So let me write it on the liability side. 10% loan amount is 20,000. ठीक है, अब लोन को लेके भी मुझे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में चेक करना है whether this loan amount has been repaid or not. पहले वो चेक करते हैं. Receipt side loan is not seen, पेमेंट साइड लोन अमाउंट इज नॉट seen. मतलब लोन जो हमने लास्ट ईयर लिया था, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट पे तो आया, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी इट विल कंटिन्यू. ठीक है, 10% लोन अमाउंट इज 20,000. लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ रेट एंड डेट. अगर रेट आ गया तो इंटरेस्ट चेक करना है. अब ये चेक करो कि इंटरेस्ट का अमाउंट हमने पे किया है या नहीं पे किया है. Yes, sir. How Payment much? side 2,000. 2,000 is given. 2,000. हाँ, और 20,000 का 10% is 2,000 only. मतलब हमने इंटरेस्ट पे किया है. So to interest over here, interest on लोन कर दो and amount is 2,000. मतलब कुछ amount of interest outstanding नहीं है. ठीक है, so we are done with the adjustments now. Now receipt side, opening cash balance 2,600, closing cash balance 4,000. So opening has to come in opening balance sheet. Cash balance amount is 2,600 and closing balance sheet में asset side पे 4,000. ठीक है, opening and closing balance लिख दिया. फिर on the receipt side we can see that entrance fees is given. तो entrance fees कहाँ जाएगा? Income
ओके सो पहले एडजस्टमेंट्स कर लिए, फिर रिसीव्स एंड पेमेंट्स हो गया, अब टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, दैट्स ऑल। अब ये टोटल करो कितना आ रहा है। So liabilities ज़्यादा है. Asset is 19,100 and liabilities is 21,500. ऐसा सेट कितना बताया? Asset is 19,100. 19,100, तो डिफरेंस विल बी 24। ओके तो ये ओपनिंग कैपिटल फंड जो बहुत रेयरली सीन है, ओके तो दिस इज द ओनली एंड ओनली रीजन टू डू द सम। द लायबिलिटी साइड एक्सीड द एसेट साइड। जनरली एसेट ज्यादा होते हैं, इसलिए कैपिटल फंड हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं डिफरेंस। ये बहुत कम देखने को मिलता है ना, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव बैलेंस। आई जस्ट वेट फॉर द सरप्लस और डेफिसिट, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ किसका टोटल ज्यादा आएगा? ये एक्सपेंडिचर ही ज्यादा आएगा। लेट मी कंटिन्यू ऑन द एसेट साइड। कैपिटल फंड इट इज द नेगेटिव बैलेंस 2400। तो 2400 मैंने यहाँ पर एसेट में इन कॉलम में लिख दिया। नाउ प्लीज गेट मी द टोटल ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करो कितना आ रहा है? 54,600 is the total, and उसमें से माइनस करेंगे 48,500. 6,100। ओके अब ये सही हो गया। तो दिस इज अ डेफिसिट एक्चुअली बिकॉज दिस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, अब ये 6,100 यहाँ आकर, वैसे हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड लायबिलिटी में होता है तो हम माइनस करते हैं बिकॉज बट दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस। यहाँ पर मैं ऐड कर लूंगा। ओके तो द अमाउंट ओवर हियर शुड बी 6,100। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8,500। और अब टोटल करो बैलेंस शीट का कितना आ रहा है? 51,500. 51,500. 51,500 दोनों साइड का आ रहा है, देखो। हाँ सर दोनों साइड सर आ रहा है.